Good morning, dear children. Today we will have our lesson number 17, Forest and Forest People. Children, forest means a large area of land covered with dense growth of trees. Actually, there are a large amount of trees grown over a large area of land, okay, and it is covered not only with trees, it is covered with plants, bushes, and so many living and non-living components. Trees like shrubs, vines, grass, mosses, birds, these are all living component actually. Birds, mammals, reptiles, amphibians, a lot of insects, algae and microbes are the various living component found in the forest. And what are some non-living component? Non-living component means river, lake, pond, and the stones, these hills. These are all non-living component. These are both present in the forest. Dear children, forests not only provide shelter to a variety of living things, but they used to fulfill the human needs also. So it is our duty to protect and preserve forests. You can see in the picture a area that is it is highly dense, मतलब इतना dense है कि the ray of sun rays can also not penetrate even in the ground. ये बहुत ज़्यादा dense होते हैं. Okay. Now moving forward, forest life. Forest life means the life in the forest. Forest is not only giving food, clothing to and shelter to animals, but a lot of people used to live in the forest, and they are belong to so many tribes. These people are called tribal people or Adivasis. Actually, tribal people are a group of people of the same race who follow the same customs, language and religion etc. वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं फॉरेस्ट में, और ये जो ग्रुप है ये सरदार इनको लीड करते हैं, चीफ होते हैं वो, और ये इनकी अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है. दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस. ये हमारे जो एरिया है, हम जैसे रहते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं. दे आर नॉट नोन अबाउट द civilization. In fact, you can see what are the different features. Actually, the features are they used to live in remote areas like hills and forests. Their livelihood totally depend on एग्रीकल्चर एंड हंटिंग. उनकी लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर और हंटिंग पे डिपेंड करती है. और वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, जो वॉट एवर इज़ अवेलेबल इन द forest, they used to prepare the objects with them only, like wood, leaves, mud, etc. They used to prepare beautiful potteries with the help of bamboo, clay, glass, baskets, brooms, containers. All these are being prepared by the Adivasi peoples. They are having low literacy level. वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और पावर्टी में रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में रहते हैं. एंड दे आर हैविंग देयर ओन कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज. दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस. हैं वो ह्यूमन काइंड, बट वो यहाँ से काफ़ी कटे हुए हैं सिविलाइजेशन से, इसलिए उनकी अलग कल्चर है, उनका अलग लैंग्वेज है, उनका अलग रिलीजन है. और वो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया में उसके बारे में बिल्कुल उनको अवेयरनेस नहीं है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, these are the various tribes of India. These are the tribal people of Andhra Pradesh. They are called Chenchus, Gond, and these are the Birhar, Santhal, Gond, Mundas. These are the tribal people of Bihar. Now, in Kerala, Kanis and Uralis are the different tribes. In Rajasthan, Bhil, Meena and Bega are the tribes of Rajasthan. And in Sikkim, you can see Bhutias, Lepchas. They are having different costume
उनके कॉस्ट्यूम भी हमारी तरह नहीं होते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो जंगलों से जो सामान है, लकड़ियां हैं या कागज़ है, सॉरी पत्ते हैं, सूखे पत्ते, घास, ये सब कलेक्ट करने का है। और वो अपना कस्टम ट्रेडिशन उनका अलग होता है, वो अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, उनका फेस्टिवल्स को डांस और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स के थ्रू। ये हियर यू कैन सी वो अपना अपने लाइफस्टाइल में जो पेड़ों से जो चीज़ें मिलती हैं उसी को वो यूज़ करते हैं। ये जो है गोंद निकालने का, गम निकालने का काम कर रही हैं पेड़ों से। ये सब चीज़ें वो ले जाके मार्केट में सेल कर देते हैं, जो वीकली हाट बाज़ार लगता है, और वहाँ से जो पैसे आते हैं उससे वो कपड़े और दूसरी चीज़ें परचेज़ करते हैं। नाउ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, और उसके बाद दे दो विदाउट रिप्लांटिंग दैम। मीन्स डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और उसके प्लांटेशन के लिए ध्यान नहीं देना। देयर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? सो दैट द एग्रीकल्चर लैंड एक्सपांड करने के लिए, इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना होगा, और इसके कारण पेड़ों की कटाई करते हैं। फॉरेस्ट को और एक रीज़न से क्लियर किया जाता है, डैम्स, हाउसेस, फैक्ट्री बनाने के लिए, साथ ही साथ टिम्बर ऑब्टेन करने के लिए, सो दैट फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल और पेपर प्रोडक्ट्स ये सारे इजीली अवेलेबल हो जाएं, और साथ ही साथ कैटल ग्रेजिंग के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर आर सम इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इट इंक्रीजेज वाइल्ड फायर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाता है, फ्लड इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज जो पेड़ हैं वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को। वाटर साइकिल में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द कॉज। आप देख सकते हो इसमें पूरे पेड़ कट गए हैं और यहाँ पे सॉइल इरोड हो गई है। इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज सॉइल बिकम ड्राई, लूज एंड इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो जाएगी, और रेन वाटर ईजिली उसका न्यूट्रिएंट को वॉश अवे कर सकता है। साथ ही साथ लैंड जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं है वो वहाँ पे कल्टीवेशन, क्रॉप का कल्टीवेशन और रीप्लांटिंग ट्री भी पॉसिबल नहीं है, वो भी फेलियर हो सकता है। नाउ इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट, जहाँ पे ट्री वाला एरिया है उस एरिया को आप देखिए, और जहाँ ट्री नहीं है वो एरिया को देखिए। ये फॉरेस्ट मदद करते हैं मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, और रेनफॉल को अट्रैक्ट भी करते हैं। साथ ही साथ अर्थ का जो टेम्परेचर है और पॉल्यूशन लेवल है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ में ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जैसे कि आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या होगा, एयर में इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस ऑल्सो लीड टू फ्लड एज देयर विल बी द लेस नंबर ऑफ ट्रीज टू एब्जॉर्ब रेन वाटर। रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, येस इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। खूब सारे जो स्पीसीज़ हैं प्लांट के वो ख़त्म हो जाएंगे, साथ ही साथ एनिमल बर्ड के भी स्पीसीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। नाउ फ्यूचर के लिए भी वो हमारे शॉर्टेज हो सकते हैं, टिम्बर वुड हमको अवेलेबल नहीं होगा। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कंजर्व द फॉरेस्ट
हमको कंजर्व करने की ज़रूरत है फॉरेस्ट को, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. वी आर रिक्वायर्ड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी विल हैव टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हमारे यूज़ के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए पेड़ों की कटाई बंद करनी होगी. साथ ही साथ हमको रिसाइकल और रीयूज़ करना होगा प्रोडक्ट का. जैसे हम पेपर वेस्टेज करते हैं, बुक्स का इस्तेमाल, ये सब का रीयूज़ करना चाहिए. साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ प्रोटेक्शन के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. लाइक उन्होंने बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, नेशनल पार्क बना लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना ली, जैसे हमारे रायपुर में भी बन गया है जंगल सफारी. इससे क्या हो रहा है, जो पेड़ हैं उनका कटना स्टॉप हो रहा है और साथ ही साथ वहाँ जो एनिमल्स है उसकी हंटिंग भी रोक दी गई है. इसके साथ ही साथ लोगों ने भी बहुत कोशिश की है प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों को. उन्होंने सीक्रेट ग्रूव्स के नाम से प्रोटेक्ट किया हुआ है पेड़ों को. देखो आप यहाँ पे इसको एक एरिया बना दिया जाता है और वहाँ पे भगवान की तरह उसको वर्शिप किया जाता है, पूजा की जाती है. और इस एरिया में पर्टिकुलर किसी भी पेड़ को काटना अलाउ नहीं होता और ना ही किसी एनिमल को आप मार सकते हैं. इस तरह से सेव हो रहा है हमारा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया, है ना. और ये पर्टिकुलर ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में है, नॉर्थ में, और केरल में भी बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप बनाए गए हैं. And like this we are concluding the chapter. It is over, and please go through the lesson, read the lesson thoroughly, and have a great day. Thank you.